Hello and good morning to all. Well, here we are discussing our third chapter, Cyber Ethics. Today, in this video, we have to discuss the following points. First, we have to discuss about secure data transmission. Then we will learn about this intellectual property rights, then plagiarism, and then digital property rights. Now, let's start. Well, in the previous class, we have discussed about privacy and online frauds, which are the part of our e-commerce. Now we have to read the third thing which is involved in e-commerce, that is secure data transmission. As I have taught you earlier that in e-commerce generally we transfer money from one account to another by using some online tools or utilities. That's why this kind of transaction is very much important in e-commerce. Well, to maintain the security and integrity of data in this type of transmission, we need a secure data channel to make our data secure or to save ourselves from any kind of eavesdropping or hacking. Now let's read and then understand. Secure data transmission means applying enough technical safeguard so that data travels safely to its target without being compromised or eavesdropped. Fine. To ensure secure data transmission, usually following techniques are applied. Well, it simply means that सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन का इजी वर्ड्स में सिंपल सा मतलब निकल करके आता है भाई, जो डेटा सेंडर से रिसीवर या रिसीवर से सेंडर की तरफ जा रहा है उस डेटा को सिक्योर करना और उसको ईव्सड्रॉपिंग से या फिर किसी भी तरीके से लीक से प्रोटेक्ट करना. फाइन. अब इस डेटा सिक्योरिटी के लिए कुछ टेक्निक्स हम लोगों को नीचे दी गई हैं जिनको हम लोगों को समझना है. Fine. Well, in this technique number 2 and technique number 3 which is given over here, it means this one and this one, these are two most commonly used approach in most of the websites. Fine. ये जो data encryption और safe protocols वाली बात है ये 90% websites में use होती है. Fine. Whereas जो first वाला part है that is SSL secure data transmission, ये कुछ कुछ websites में नहीं भी होता है but ये भी बहुत important है. तो अब हम लोगों को समझना है कि आखिर ये तीनों चीजें हैं क्या एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑल दीज थ्री. फर्स्ट वी हैव SSL सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन. फाइन. वेल द फर्स्ट थिंग, व्हाट इज दिस SSL? आखिर ये SSL होता क्या है? तो भाई इन जनरल दिस SSL स्टैंड्स फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर. इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योर सॉकेट लेयर और ये एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है. फाइन. इट इज अ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल विच इनक्रिप्ट्स द लाइन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. फाइन. जो क्या कर रहा है, क्लाइंट और सर्वर या फिर सेंडर और रिसीवर के बीच की जो लाइन है उसको सिक्योर बनाता है. फाइन. अब रीड करते हैं और समझते हैं आखिर ये करता क्या है. वेल, SSL इज अ स्टैंडर्ड सिक्योरिटी प्रोटोकॉल विच स्टैब्लिशेस इनक्रिप्टेड लिंक बिटवीन अ वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर. फाइन. ये क्या कर रहा है भाई, वेब सर्वर और एक ब्राउजर के बीच में एक सिक्योर और इनक्रिप्टेड लाइन को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करता है. फाइन. द यूजेज ऑफ SSL टेक्नोलॉजी इंश्योर्स दैट all data transmitted between the web server and browser remains encrypted and hence remains safe. Fine. ये SSL टेक्नोलॉजी क्या करती है भाई, ये चेक करती है कि जो वेब ब्राउजर्स और वेब सर्वर्स के बीच में जितना भी डेटा फ्लो हो रहा है वो सारा का सारा डेटा सिक्योर है, एनक्रिप्टेड है या फिर नहीं. फाइन. वेल, नाउ लेट्स डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टर्म. Generally, whenever we use any online shopping site, fine, in all these online shopping sites we have this SSL that stands for secure socket layer. अब ये सिक्योर सॉकेट लेयर क्या करती है, जैसे ही हम लोग किसी भी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं और जब हम लोग ऑनलाइन पेमेंट को करते हैं तो ऑनलाइन पेमेंट के टाइम पे जो पेमेंट गेटवे होता है उस पेमेंट गेटवे से लेकर के बैंक तक का जितना भी डेटा ट्रांसफर हो रहा है, fine, it means all that data in which you have your card details, your e-banking details, your passwords, your OTVs, your CVV numbers. फाइन. इन सारी चीज़ों को सिक्योर करना और इनको किसी ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जिसमें कि ह्यूमंस इसको समझ ना पाए या फिर इसको एनक्रिप्ट कर देना सिक्योर सॉकेट लेयर का मेन फंक्शन होता है. फाइन. आई थॉट कि इतना समझ में आ गया होगा सब लोगों को. फाइन. नाउ सेकंड वी हैव डेटा इंक्रिप्शन. अब सेकंड चीज़ क्या होती है, डेटा इंक्रिप्शन. वेल, अगर सिक्योर सॉकेट लेयर अवेलेबल नहीं है तो उस केस में हम लोग एक सिंपल सा काम कर सकते हैं भाई, वी हैव सम टूल्स थ्रू विच वी कैन इनक्रिप्ट आवर डेटा.
हम लोग जो भी डेटा सेंड कर रहे हैं इंटरनेट पे हम लोग उसको इनक्रिप्ट कर सकते हैं. वेल, दिस डेटा एनक्रिप्शन इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर द पेमेंट्स बट इट इज ऑल्सो यूजफुल फॉर ऑल द मैसेजिंग सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग कोई भी मैसेज सेंड करते हैं, सपोज करो भाई कोई इंपॉर्टेंट मैसेज है, फाइन, जिसमें मेरी कुछ अकाउंट डिटेल्स हैं या जिसमें मेरा कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, मैं वो शेयर कर रहा हूँ अपने किसी फ्रेंड के साथ. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम है भाई. द प्रॉब्लम इज दैट एनी हैकर और एनी इंट्रूडर or any eavesdropper can easily hack or read that message. Now, to protect that data or that message from any kind of hacking or any kind of leak, I can encrypt my data. मैं क्या कर सकता हूँ, अपने डेटा को encrypt कर देता हूँ या कर सकता हूँ. And if once I will encrypt it, then that data will be converted into any unreadable form. Fine, किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा जो कि रीडेबल नहीं होगा, जिसको यूजर समझ नहीं पाएगा. Fine. So this data encryption is encryption of data when sent over internet. Fine. Well, it is hard to steal, hence it becomes very safe. Fine. Well, it is not hard to steal but it is hard to read. अगर किसी भी डेटा को मैं encrypt कर दूंगा तो वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा रीड करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, मेरा डेटा था सिंपल सा, मुझे लिखना था 123 कि मेरा 123 भाई पासवर्ड है किसी एक अकाउंट का. ठीक है, मैंने 123 लिख के भेजा, बट ये 123 की जगह पर जब ये डेटा इंक्रिप्ट हुआ 123 की जगह पर यहाँ पर कुछ सिंबल्स आ गए, कुछ अल्फाबेट्स आ गए, और लेट सपोज कि इन 3 डिजिट्स के अगेंस्ट यहाँ पर एक 12 डिजिट का सिक्योर वर्ड लिख करके आ गया जो इस 123 को रिप्रेजेंट कर रहा है. अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा भाई, कोई भी हैकर या अटैकर उस 12 डिजिट्स को डिकोड नहीं कर पाएगा इजीली, तो उसको डेटा भी नहीं मिलेगा. फाइन, दैट्स व्हाई दिस इंक्रिप्शन टेक्निक इज जनरली यूज्ड. और इस इंक्रिप्शन में हर एक कंप्यूटर का, हर एक वेबसाइट का अपना अलग इंक्रिप्शन लॉजिक होता है. That's why it is safe for everything. Then next we have use of safe protocols. Fine. Well, the best option that we have is we can use safe protocols. अगर हम लोग किसी भी टाइप का safe protocol use कर रहे हैं, it means if you are using HTTPS, SFTP, fine, और FTPS और SSH, अगर हम लोग इन protocols का use कर रहे हैं, then by using these protocols also we can save our data. फाइन, हम लोग अपने डेटा को सेव कर सकते हैं सारे सिक्योर प्रोटोकॉल्स का भी यूज करके, बिकॉज सिक्योर प्रोटोकॉल्स में भी डेटा एनक्रिप्टेड होता है. फाइन. वेल, नाउ लेट्स रीड एंड देन डिस्कस. वेल, यूज सेफ प्रोटोकॉल्स सच एज फाइल्स यूज सिक्योर एफटीपी, whereas possible one should use safe protocols that use some safety shells such as SSH. It will ensure the safety of data being transferred. ये जितने भी सिक्योर प्रोटोकॉल्स होते हैं क्या करते हैं, ये डेटा की सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के टाइम पे. फाइन. अब इसका मतलब ओवरऑल अगर हम लोग समझे तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ रहे थे भाई, कि जो ओनली मेथड दैट वी हैव टू सिक्योर आवर डेटा इज टू इनक्रिप्टेड. फाइन. अगर हम लोग समराइज करें तो हम लोग एक सिंपल सी बात कहेंगे कि किसी भी टाइप के अटैकिंग से या हैकिंग से अगर डेटा को बचाना है तो हम लोगों के पास एक ही सिंपल सा सोल्यूशन है. उस सोल्यूशन के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं. हम लोग वहाँ पर SSL यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट इंक्रिप्शन कर सकते हैं, हम लोग सेफ प्रोटोकॉल्स का यूज़ कर सकते हैं. बट ओवरऑल हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग अपने डेटा को इनक्रिप्ट कर दे रहे हैं, यानी किसी ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं विच कैन नॉट बी रेड और अंडरस्टूड बाय द अटैकर्स. फाइन. नाउ लेट्स रीड दिस बॉक्स ओवर हियर. सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन मीन्स अप्लाइंग इनफ टेक्निकल सेफगार्ड्स. फाइन. मतलब क्या हुआ, इट सिंपली मीन्स टू अप्लाई सम काइंड ऑफ सेफ्टी सो दैट डेटा ट्रैवल्स सेफली टू इट्स टारगेट. फाइन. जिसके थ्रू क्या होगा, डेटा विल ट्रैवल सेफली विदाउट एनी काइंड ऑफ लीक और हैकिंग टू द टारगेट. फाइन. और विदाउट बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड और eavesdropped. Fine. So it was all about secure data transmission. Now we have to read a very important topic, or we have to discuss a very important thing. You can do one thing now, just pause this video, read this whole page once. अगर कोई भी doubt है then you can comment down all your doubts in the comment section. Now our second most important topic, जिसमें हम लोग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं. फाइन. एंड दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास फॉर यू अगर तुम लोग इसको ढंग से समझ रहे हो और सुन रहे हो, बिकॉज दीज टॉपिक्स आर जनरली आस्क्ड इन द एग्जाम. ऑल दीज 3 थिंग्स कैन बी देयर फॉर एटलीस्ट 2 to 3 मार्क्स. मतलब इन तीनों चीज़ों से, एक छोटी सी स्लाइड से एटलीस्ट क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम्स में 2 से 3 मार्क्स के आसपास के क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट वी हैव टू लर्न. वेल, नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट सम एथिकल इश्यूज. फाइन. We have to discuss about some security glitches or some kind of ethical issues which are generally there on the internet. Fine. अभी ethics का मतलब क्या होता है, कुछ rules या कुछ moral principles. Fine. अब ये जितने भी moral principles होते हैं इनमें कुछ guidelines होती हैं जो हम लोगों को follow करनी होती हैं. Fine. लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन guidelines को follow नहीं करते हैं. For example, क्लास में ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो टीचर के इंस्ट्रक्शंस को नहीं सुनते हैं. Fine.
सिमिलरली इंटरनेट पे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, गाइडलाइंस का फॉलो नहीं कर रहे हैं और इंफॉर्मेशन को या तो स्टील कर रहे हैं या फिर उसका मिसयूज कर रहे हैं या फिर किसी और पर्सन की इंफॉर्मेशन को अपनी इंफॉर्मेशन के तरीके यूज कर रहे हैं। फाइन, तो ये सारी चीजें अवेलेबल हैं ऑनलाइन और अब हम लोगों को इन्हीं चीजों के बारे में डिटेल में समझना है। वेल, these days we can easily say that our society is information society. Fine, and our era is information era. As we all know that information is the mean to acquire knowledge. Fine, information क्या होती है, ये एक मेन चीज है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉलेज को एक्वायर कर सकते हैं। In other words, we can say that information forms the intellectual capital for a person or body. Information क्या करती है भाई, किसी भी पर्सन के लिए इंटेलेक्चुअल कैपिटल की तरीके वर्क करती है। फाइन, however there are many ethical issues involved with the uses and availability of information. फाइन, इतनी सारी चीज़ों के बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और एथिकल इश्यूज हैं जो कि इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अवेलेबल है। Now we have to discuss about all the ethical issues which are available on internet. Fine, well, as we all know that कि भाई internet is a collection of variety of data. फाइन, इंटरनेट क्या है, एक तरीके से कलेक्शन है बहुत सारे डेटा का और ये डेटा अलग अलग इंडिविजुअल्स के थ्रू क्रिएट करा जाता है, फाइन, डेवलप करा जाता है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये डेटा सिक्योर है कि नहीं, क्या इस डेटा को कोई भी लीक तो नहीं कर सकता, क्या इस डेटा का कोई यूजर मिसयूज तो नहीं कर सकता, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग किसी और के डेटा को स्टील करके अपने डेटा की तरीके प्रेजेंट कर सकते हैं। वेल, ऑल सच थिंग्स आर पॉसिबल देयर। So now one by one we have to discuss 3 topics or 3 points. First one is intellectual property rights, then second is plagiarism, and then the third is digital property rights. Fine, अभी हम लोगों को इन 3 चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है। Fine, so just focus, listen carefully और इस वीडियो में कुछ भी स्किप मत करना। Now first we have to discuss about this term intellectual property rights. Fine, that आखिर ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते क्या है, तो पहले हम लोग इस नोट वाले बॉक्स को पढ़ते हैं बिकॉज दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली। वेल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर द राइट्स ऑफ द ओनर ऑफ द इंफॉर्मेशन टू डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन इज टू बी एक्सचेंज्ड। फाइन, अब सिर्फ इन 4 लाइन्स पे, फर्स्ट 4 लाइन्स पे फोकस करो तो यहाँ पर लिखा हुआ है भाई कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, दीज आर द राइट्स ऑफ द ओनर ऑफ इंफॉर्मेशन टू डिसाइड हाउ मच इंफॉर्मेशन इज टू बी एक्सचेंज। मतलब ये ओनर के राइट्स हैं जो बताएंगे कि कितनी इंफॉर्मेशन को हम लोग एक्सचेंज करेंगे, शेयर करेंगे या फिर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फाइन, अलॉन्ग विद दैट, विद द हेल्प ऑफ दीज राइट्स, ओनर इंडिविजुअल्स को राइट्स सेल भी कर सकता है अपनी इंफॉर्मेशन को यूज करने के लिए। फाइन, फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई हैव अ पीस ऑफ डेटा विच आई डू हैव, विच आई हैव क्रिएटेड बाय माई सेल्फ। फाइन, अब अगर डेटा वो मैंने क्रिएट करा है, इट मीन्स वो डेटा मेरी प्रॉपर्टी हो गई। Fine, now my main aim is to protect that data from other type of attackers or intruders. Fine, अब मैं काम कर सकता हूँ, अगर मुझे पता है कि उस डेटा को और लोग यूज करेंगे तो मैं उसको शेयर करने के लिए कुछ रूल डिफाइन कर दूंगा। फाइन, मैं बोल दूंगा लोगों से कि भाई यू हैव टू पे मी दिस मच टू यूज माई डेटा। अगर मैं ऐसा करता हूँ और इन सारी चीज़ों को, जहाँ पे मैं अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ पॉलिसीज डिफाइन कर रहा हूँ, उनको हम लोग कह देते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। मतलब डेटा को एक्सचेंज करने के लिए या शेयर करने के लिए जो भी हम लोगों ने रूल्स डिफाइन करे हैं, वो सारे के सारे रूल्स आ जाते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स या फिर IPR के अंडर में। फाइन, नाउ लेट्स रीड दिस पैराग्राफ। एज मेंशन्ड अर्लियर, इंफॉर्मेशन मेक्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इंफॉर्मेशन क्या बनाती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाती है भाई। नाउ एनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड और क्रिएटेड विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम। फाइन, किसी भी इंफॉर्मेशन को बनाने के लिए जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, दे यूज टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। फाइन, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस बुक की बात करूं तो इस बुक को लिखने के लिए राइटर ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी, बट मैंने इसको यहाँ पर सिर्फ एक स्क्रीनशॉट की तरीके यूज़ करा है और इस पेज को यहाँ पर लाने में मेरा कोई भी एफर्ट नहीं था। फाइन, नाउ द कॉस्ट फैक्टर इज ऑल्सो इन्वॉल्व। यहाँ पर कॉस्ट फैक्टर भी इन्वॉल्व होता है। बहुत सी बार बहुत सारे कंटेंट को क्रिएट करने के लिए वी हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड समटाइम्स यू हैव टू पे अ लॉट ऑफ मनी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी वीडियो गेम की बात करूँ या मैं अगर किसी एनिमेटेड मूवी क्लिप की बात करूँ, तो जितने भी एनिमेटेड क्लिप्स होती हैं, इनके लिए यूजर्स या जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो घंटों घंटों बैठ करके क्या करते हैं, डिज़ाइंस क्रिएट करते हैं, फिर वहाँ पे कोड सेटअप करते हैं ताकि वो जो उन्होंने लेआउट्स प्रिपेयर करे हैं, जो उन्होंने अपने कैरेक्टर्स प्रिपेयर करे हैं, वो सारे के सारे वर्क करें। और कभी कभी इसमें इन लोगों को बहुत सारा मनी भी स्पेंड करना पड़ता है। नाउ दो वंस प्रोड्यूस्ड इट बिकम वेरी इजी टू डुप्लीकेट इट और शेयर इट विद अदर्स। फाइन, अब अगर एक बार ऐसा कोई गेम हमारे पास आता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस गेम को फ्री में शेयर करते हैं।
फाइन, अगर हम लोग ओनर की परमिशन के बिना इस गेम को फ्री में शेयर कर रहे हैं, फाइन, देन इट्स अ टाइप ऑफ क्राइम, ये क्राइम बन जाता है। जरा समझते हैं आखिर ये होता क्या। फाइन, but this very thing makes information difficult to safeguard unlike tangible properties. Well, the creator or producer of the information is the real owner of the information. मतलब जो भी इस information को create करता है वो real owner होता है, and the owner has every right to protect his or her intellectual property. अब जिसने भी information को create करा है उसकी proper rights है कि अपनी information को save करे. Now, to protect one's intellectual property rights, one can get information copyrighted or patented or use trademarks. Fine. अब अगर मैं किसी ऐसे पर्सन की जिसकी इन्फॉर्मेशन उसने खुद क्रिएट करी है, मुझे अगर यूज करनी है तो मुझे उस इन्फॉर्मेशन को यूज करने के लिए इधर आई वांट अ कॉपीराइट और आई वांट अ पेटेंट और आई वांट अ ट्रेडमार्क. फाइन, अगर मेरे पास कॉपीराइट, पेटेंट या ट्रेडमार्क है तो मैं उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन का यूज कर सकता हूं, अदरवाइज वो यूज इलीगल यूज होगा. फाइन, बहुत सिंपल सी बात मैंने कही कि अगर फॉर एग्जांपल मैं किसी एक सॉफ्टवेयर की कॉपीज मार्केट में सेल करना चाहता हूं, फाइन, तो सेल करने के लिए या तो मेरे पास उस सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट हो, या फिर मेरे पास उस सॉफ्टवेयर का पेटेंट हो, या फिर मेरे पास उस सॉफ्टवेयर का ट्रेडमार्क हो, तभी मैं सॉफ्टवेयर को अपनी मर्जी से कॉपी करके मार्केट में सेल कर सकता हूं. अदरवाइज इट कैन बी कंसीडर्ड एज एनी अनएथिकल एक्टिविटी. फाइन, नाउ द एथिकल इश्यूज इन्वॉल्व्ड विद इट is that information must be exchanged without the consent of its owner. फाइन, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा इशू है वो क्या है कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है भाई वो ओनर की परमिशन के बिना शेयर हो रही है. तो अगर हम लोग ओनर से परमिशन ग्रांट कर लें, इट मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर ओनर से पूछ लेते हैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, देन इट विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ एथिकल इशू. नाउ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड फॉर इट. फाइन, जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट हम लोग को करना चाहिए. अब यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स है जरा देखते हैं उसको हम लोग. वेल, फर्स्ट, encourages individuals and businesses to create new software and new software applications as well as improving existing applications. फाइन, अगर हम लोग इन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का यूज करते हैं तो इससे बेनिफिट्स क्या है भाई. बेनिफिट क्या है? सबसे पहला कि न्यू इंडिविजुअल्स और जितने भी न्यू बिजनेसेस हैं इन सब लोगों को एक तरीके से ये एनकरेज करता है नया कंटेंट क्रिएट करने पे. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, इंश्योर्स न्यू आइडियाज एंड टेक्नोलॉजीज आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड. फाइन, सेकेंडली क्या करता है भाई, ये इंश्योर करता है कि जितने भी नए थॉट्स और नए आइडियाज हैं उनको ही हम लोग शेयर करें, हम लोग किसी भी पुराने एक पैटर्न को फॉलो ना करें. देन थर्ड पॉइंट इज प्रमोट्स इन्वेस्टमेंट इन द नेशनल इकोनॉमी. और अगर हम लोग किसी नए प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं पुराने प्रोडक्ट को कॉपी करने की बजाय, तो इससे इनकम जनरेट होती है जो कि हमारी नेशनल इकोनॉमी में भी एक छोटा सा इम्पैक्ट लाती है. फाइन, तुम लोगों ने इकोनॉमिक्स में वाला थोड़ा पार्ट पढ़ा होगा. फाइन, नाउ लेट्स डिस्कस दिस टर्म विद एन एग्जाम्पल. सपोज करो भाई मैंने ये वीडियो क्रिएट करा. अगर मैंने ये वीडियो क्रिएट करा तो उस वीडियो को क्रिएट करते टाइम मेरे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगे होंगे. फाइन, फॉर एग्जांपल जब मैंने वीडियो बनाया था तो मैंने क्या करा, मैंने पहले 1 घंटा बैठ के पूरी पीपीटी प्रिपेयर करी. फाइन, मैंने कुछ स्क्रीनशॉट्स लिए, मैंने कुछ कंटेंट लिया, मैंने उस कंटेंट को कंपाइल करा और मैंने ये पीपीटी बनाई. फाइन, अब जब मैंने 1 घंटा बैठ के इस पीपीटी को प्रिपेयर करा, इट मीन्स मैंने यहाँ पर अपने कुछ एफर्ट्स या मैंने अपना कुछ यहाँ पर टाइम को अप्लाई करा यहाँ पर. फाइन, नाउ what I am doing, I am recording this also. It means मैंने पीपीटी को क्रिएट करने के बाद मैंने बैठ कर रिकॉर्ड करा. इट मीन्स मैंने यहाँ पे अपनी ऑडियो भी इसमें इम्प्लीमेंट करी, मैंने अपनी एनर्जी भी इसके ऊपर थोड़ी सी यूटिलाइज करी और फिर एंड में ये एक वीडियो मेरी लगभग 3 to 4 आवर्स के एफर्ट्स के बाद आई. फाइन, अब जब एक 3 to 4 आवर्स के एफर्ट्स के बाद मैंने ये वीडियो बनाई, अब तुम लोग क्या करते हो, बहुत से लोग क्या करोगे, इस वीडियो को डाउनलोड कर लोगे, डाउनलोड करके शेयर करोगे. वेल, इफ यू विल डू सो, अगर तुम लोगों में से कोई भी ऐसा करता है तो इट कैन बी कंसीडर्ड एज एन एथिकल इशू. ये क्या बन जाता है, ये एक एथिकल इशू बन जाता है. अब इस इशू का मेन फैक्टर यहाँ पर क्या है कि भाई तुम मेरी परमिशन के बिना, फाइन, तुम मेरे एफर्ट्स का मिसयूज कर रहे हो और मेरे डेटा को मेरे कंसेंट के बिना यूज कर रहे हो और शेयर कर रहे हो मार्केट में. फाइन, अब इससे क्या हो गया भाई, मेरा लॉस हुआ. मेरा लॉस क्या हुआ कि मैंने जिस पर्पस पे इस डेटा को क्रिएट करा था वो डेटा उस पर्पस पे वहाँ पर यूज़ नहीं हो पा रहा है. फाइन, और कुछ यूट्यूबर्स या कुछ अदर कंटेंट क्रिएटर्स क्या करते हैं भाई, दूसरे लोगों के डेटा को कॉपी कर लेते हैं. फाइन, और बाद में उसी डेटा को एज देयर ओन डेटा प्रेजेंट कर देते हैं. फाइन, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ एथिकल इशू. फाइन, अगर हम लोगों में से कोई भी ऐसा काम करता है तो वहाँ पर क्या हुआ, जिस भी क्रिएटर ने उस डेटा को क्रिएट करा था ये उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी. फाइन, बिकॉज उसको उसकी प्रॉपर्टी के लिए जो भी कुछ वहाँ पर इंसेंटिव मिलना चाहिए था या जो भी उसको वहाँ पर कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए था वो शेयर हो गया ना कुछ एक ग्रुप के बीच में.
Fine. Now it can be a big problem for that particular content creator. Fine. Now what if ये चीज नहीं करी जाती? फाइन, अगर ऐसे इस चीज को हम लोग नहीं करते तो क्या होता है भाई? अगर डेटा को हम लोग कॉपी नहीं करते तो जितने भी क्रिएटर्स हैं वो क्या करते? इस वीडियो को कॉपी करने की बजाय इससे कुछ इंस्पिरेशन लेते, इससे कुछ थॉट्स को निकालते और अपनी खुद की वीडियो बनाते। माइट भी इसमें जितने मैंने एरर्स करी हुई हैं उन एरर्स को रेक्टिफाई करके खुद नई और अच्छी वीडियो बनाते, जिससे क्या होता? एक न्यू कंटेंट आता मार्केट में जिसकी वैल्यू इस कंटेंट से ज़्यादा होती और आई थिंक वो और ज़्यादा पॉपुलर हो जाता। फाइन, दैट्स वाई दिस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, अगर प्रॉपर्टी राइट्स नहीं होंगे तो यूज़र अपने एफर्ट्स को कम कर देंगे और मार्केट में से प्रोडक्ट्स का आना भी धीरे धीरे करके कम होता चला जाएगा। फाइन, और अगर किसी भी नए प्रोडक्ट का मार्केट में आना कम हो जाएगा तो अल्टीमेटली हम लोग वहाँ पे मनी स्पेंड नहीं कर रहे होंगे, तो उससे लॉस होगा हमारी गवर्नमेंट का, हमारी गवर्नमेंट की या हमारी कंट्री की इकोनॉमी का। फाइन, so it was all about intellectual property right. Now after this we have to discuss about two terms, that is plagiarism and digital property rights. Well, in our next class we have to discuss about these two terms in detail. Till then you just have to read this much very carefully. Fine, in our next class that will be on Monday now. In that class we have to discuss everything in detail, and along with that you will also get the written notes by that class only. Fine, till then stay safe, stay healthy, keep learning, and thank you for watching this video.